Dear friends in the Lord, we want to praise the Lord for this time that He has given to us so that we can study His holy word. Dear friends, this is in continuation of our evening Bible study, and I'm going to restart from the book of Philippians that we left last time, and I'm going to continue from verse chapter 3, verse 8 onwards. प्रिय मित्रों, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन में, और हम लोग इस बाइबल अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 8 पद से। और मैं जानता हूं कि हमने बहुत कुछ सीखा इन दिनों में, और इस बाइबल स्टडी के द्वारा हमने प्रभु के वचन को अपने जीवन में जाना, और ये समय होगा कि हम इस अध्ययन को आगे करें। और मेरी आपसे विनती है कि हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे, और अगले महीने हम प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के बारे में देखेंगे। हालांकि जो एडवेंट सीजन की शुरुआत होती है वो 29 नवंबर से हो जाएगी। 29 नवंबर को पहला रविवार होगा एडवेंट का, और ये 3 और संडे को मनाया जाएगा, 6 तारीख को और उसका 13 तारीख को, और फिर उसके बाद 20 तारीख को हम एडवेंट संडे मनाएंगे। लेकिन आज और इन दिनों में, जबकि थोड़े दिन बाकी हैं, मैं आपके सामने फिलिपियों की पत्री के इन बाकी अध्यायों का अध्ययन रखूंगा ताकि हम प्रभु वचन को सीख सकें और समझ सकें। Dear friends, we are very soon going to enter into the Advent season, and from 29th onwards the Advent season worship will be held. Of course, this Sunday we are having our worship by link, but God willing, we will see what to do now from 6th onwards, 6th December onwards, whether we'll have our worship here in the church or will continue by link. That will be let you know later on. आइए हम प्रार्थना करें, अपने अध्ययन को हम शुरू करें। Let's pray as we study the word of God. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु, कि आज फिर से एक बार हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हम चाहते प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें ताकि अध्ययन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। होने दे प्रभु कि हम आपके वचन के गहरे भेदों को समझें और अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंप सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, as you all know that this letter of St. Paul to the church at Philippi was written by St. Paul, and St. Paul started this congregation with a very negative note, because he was guided by the Holy Spirit that someone came into the dream and said, come over and help us in Macedonia. मकदूनिया की बुलाहट के बारे में हम देखते हैं। And when Paul responded to his call, he was led to Philippi. And the first person who came to Christ was Lydia, who was a business person, business woman, and was a rich lady. Then there was a servant girl who came to Christ, and then we read about the conversion of and the family of the jailer. So this is the beginning of the church in Philippi. And this city was existing at the time, and this was a very important city of the Roman Empire. And therefore St. Paul, when he went there, led by the Lord, God used him mightily. अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर पहली बात हम देखते हैं फिलिपियों की तीसरा अध्याय फिलिपियों की पत्री के 8वें पद में पहली बात है, यह पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो पवित्र हैं और जो सुहावनी बातें हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। If you read the English version of this, is very important here. Finally, brothers, and of course sisters also, whatsoever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me,
practice these things, and the God of peace will be with you. Now, here in this verse of 8 of chapter 3 of Philippians, St. Paul talks about few things which are acceptable. That means there are many things in a Christian life which are not acceptable. हम यहाँ पर इन बातों को देखेंगे या देखते हैं जो स्वीकार योग्य है। इसका मतलब ऐसे भी है कि बहुत सी बातें हैं जिनको हम स्वीकार नहीं कर सकते, जिनको प्रभु के वचन के अनुसार हमें मानने की आवश्यकता नहीं है, ये उससे हमें अपने आप को अलग रखने की आवश्यकता। अब यह क्या क्या बातें हैं उस पर हम गौर करें। वो कहते हैं कि जो जो बातें सत्य हैं, देयरफॉर व्हाटएवर इज ट्रू। सत्य क्या है? दुनिया के अंदर बहुत से लोग सत्य होने का दावा करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारी बातें सत्य हैं और हम सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण, सत्य पर आचरण करते हैं। सत्य क्या? सत्य का संबंध इतिहास से रहता है। सत्य कभी झुटलाया नहीं जा सकता और सत्य ही परमेश्वर का एक गुण है। यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, सत्य और जीवन हूं। यानी जो सत्य है वास्तव में वो बदल नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह बदल नहीं सकते। उसने कहा कि मैं सत्य हूं। अगर हम जो उसके विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि वो कभी बदलता नहीं है। यीशु ने स्वयं अपने बारे में कहा, मैं कल, आज और हमेशा एक सा हूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मुझ में कोई तब्दीली, कोई बदलाहट नहीं आ सकती क्योंकि मैं सत्य हूं। अब सत्य के आगे अगर हम देखना चाहें तो दुनिया में सत्य क्या? सत्य का मतलब है होता है वास्तविकता। द ट्रूथ इज द रियलिटी एंड इंडीड जीसस इज रियल। यीशु मसीह सत्य है। उसकी जो बातें हैं वो सत्य से परिपूर्ण है। उसकी बातों में कोई झूठ नहीं है और इसलिए उसकी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। यीशु मसीह ने एक बार और ये कहा था, जीसस हैज सेड वंस दैट हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड विल नॉट पास अवे। स्वर्ग पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। जो कुछ उसने कहा उन बातों में कोई ऐसी बात नहीं है जो टलने वाली है या समाप्त होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह की तमाम बातें जिस पर हम विचार करते हैं, जिस पर हम गौर करते हैं, वो सत्य बातें हैं। और इसलिए यहाँ पर वो कहता है जो जो बातें सत्य। सत्य क्या है? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन। ये सत्य है। ये सत्य, इस बात को नकार नहीं जा सकता, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। हम अगर इसके बारे में और देखें तो बहुत सारी बातों को वर्णन इसके बारे में किया जा सकता है कि यीशु मसीह जो सत्य है वो अपने आप को इस दुनिया में जाहिर करता, प्रकट करता है और वो अपने बारे में कहता। अब यहाँ पर एक और चीज है सत्य के बारे में। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 17 पद से मैं पढ़ूंगा आपके सामने। जो सत्य है, इस सत्य भेद को हम झुटला नहीं सकते। क्या लिखा है पहला पतरस पहला अध्याय उसके 17 पद से, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से व्यतीत करो। हम इस दुनिया में परदेसी हैं और ये सत्य है, इसको झुटला नहीं सकते। आप और मैं इस दुनिया में परदेसी हैं और हम इस तथ्य को झुटला नहीं सकते। एंड इफ यू कॉल ऑन हिम एज फादर हु जजेस इम्पार्शियली अकॉर्डिंग टू द each one's dead deeds, conduct yourself with fear throughout the time of your exile. Time of your exile. हम अपनी दुनिया के इस जीवन में जब हम परदेशी हैं, अपने जीवन को प्रभु के भय में व्यतीत कर। ये सत्य है। आगे लिखा है 18 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निष्कलंक और निर्दोष मेमने और यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। अब ये सत्य है, ये सत्य, इसको हम नकार नहीं सकते। बहुत से लोग हैं जो इस पर अपने विचार रखते हैं, इस पर बहुत कुछ सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इस बात को पाएंगे कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना सत्य का संसार प्रकटीकरण होना। ही इज द ट्रूथ।
और आगे लिखा है, उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरों में से जिलाया और महिमा दी, और तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। यह सत्य है। इस तथ्य को कोई भी संसार का व्यक्ति कभी भी किसी भी काल में झुठला नहीं सकता। एंड व्हाट इज दैट? He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you, who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. तो ये सत्य है, this is truth, my dear friend, that in Christ we have hope of glory, because Christ has defeated death. And anyone who believes in Christ has that hope of glory, that he will not die again. Jesus said to Martha and Mary, while he was in that town of Bethany, he said, believe me, I am the resurrection and life. Those who believe in me, even though he or she dies, he will live. This is the great important truth that nobody can nullify or can doubt about it. The second point that I read here is very important again. पद 9 में लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी, मुझ में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। अब इसके पहले वो कहते हैं, जो हमने पहले देख लिया पहले पॉइंट में, कि वो जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, सत्य बातें आदरणीय हैं, सत्य बातें उचित हैं, सत्य बातें पवित्र हैं, सत्य बातें सुहावनी है, और सत्य बातें मनभावनी है, और सत्य बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। उन पर ध्यान लगाने की बात जो पहली हमारे विचारधारा में हमने देखी। अब दूसरी बात यहाँ पौलुस कहते हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। Now what does he say here? The second point, what you have learned and received and heard and seen in me. Now St. Paul was practicing practical Christianity. He never boasted himself on the things that are illusion. संत पौलुस ने उन बातों पर घमंड नहीं करी जो बातें मरीचिका है या दिखने वाली है, या हाइपोक्रिटिकल बातें, या हाइपोथेटिकल बात, उन पर उसने घमंड नहीं करा। उसने किन बातों पर विचार करा? वो कहता है, व्हाट यू हैव लर्नड एंड रिसीव्ड एंड हर्ड एंड सीन इन मी। व्हाट आर द थिंग? क्या क्या बातें जो सत्य हैं, जो आदरणीय है, जो उचित है, उन बातों को हम पौलुस को हमने देखा, उसके जीवन के अंदर देखा। एक वक्त पौलुस ईश्वर का विरोधी था, वो व्यवस्था का मानने वाला था, व्यवस्था पर चलने वाला था और व्यवस्था पर घमंड करता था। लेकिन एक दिन जब उसके जीवन में यीशु मसीह का आगमन हुआ, तो उसने सारी बातों को अपने जीवन से निकाल दिया। वो प्रभु का सेवक बन गया। अब वो प्रभु के वचन का प्रचार करता है और लोगों के पास आकर के कहता है, खासकर फिलिपी के विश्वासियों के पास, कि मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बरगला नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें झूठ नहीं कह रहा हूँ। आई हैव नॉट कम टू मिसलीड यू, बट आई एम लीडिंग यू टुवर्ड्स ट्रूथ। वो सत्य है जिस पर तुम्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिस पर तुम्हें बने रहने की आवश्यकता है। क्या हम उन बातों को समझते अपने जीवन के अंदर? मित्रों, इस बात को समझने जानने की आवश्यकता कि सत्य जो है यीशु मसीह है, वो हमें दिखनी चाहिए। वो हमने उसको ग्रहण करा, क्योंकि हमने ग्रहण करा, हमें दिखनी चाहिए। और अगर दिख रही है तो हमें सुनाने की आवश्यकता है इस बात। मैं जब प्रचार करता हूँ तो मैं केवल ये नहीं प्रचार करता भाई जो दिमाग में मेरे आ गया ना, ऐसा नहीं है। You don't think that all that I'm preaching is because it's in my head. No, it is there. Head knowledge is there. But most of all, it has come into my heart. It's my conviction. ये मेरे जीवन का एक conviction है. I am convinced that Jesus died for me. He gave his life for me. And therefore I preach today. Otherwise I will not preach. I preach today because of my conviction, and my conviction is depending on his call. He has called me, given me the ministry, and for that I am always eternally grateful to the Lord. So St. Paul is very clear here. Now the
थर्ड थिंग इज सेज हियर, वर्स 10, 10 पद में लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, और अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इस प्रकार का विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। आई रिजॉइस इन द लॉर्ड ग्रेटली दैट नाउ एट लेंथ यू हैव रिसीव्ड योर कंसर्न फॉर मी। यू वर इंडीड कंसर्न फॉर मी, बट यू हैड नो अपॉर्चुनिटी। अब पौलुस कहता है कि तुम मेरे लिए चिंता करते हो, और फिलिपी कलीसिया को शाबाशी देता है उनके दानों के लिए जो उन्होंने दिया पौलुस को। अब पौलुस इसी पत्र में कहता है कि परमेश्वर देने वाला है, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में तुम्हारे हर एक घटी का पूरा करे। वो लिखता है इस पत्री में 4 अध्याय के 19 पद में लिखता है। और फिर वो कहता है कि जो देने का कार्य है इस कलीसिया ने करा, कलीसिया के लोगों ने दिया, प्रभु के विश्वासी को, पौलुस को दिया और तिमुथियुस को दिया, तीतुस को दिया, तमाम उन लोगों को दिया जो पौलुस के साथ इस काम के अंदर पाए गए। अब पौलुस यहाँ कहता है कि वो परमेश्वर जब हम देते हैं तो मैं अपने आप को आनंदित महसूस करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। देने के बारे में मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई, फिर जागृत हुई। निश्चय तुम्हें आरंभ में ही इस का विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। तुम मेरी मदद पहले भी करना चाहते थे, पर तुम्हें अवसर ना मिला। अब तुम मेरी मदद करना चाहते हो कि प्रभु ने मौका तुम्हें दिया है, और इसके लिए हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात, चौथी बात यहाँ 11 पद में लिखा है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट करूँ। What he says here very important. Now, note that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. संतुष्ट होना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य है। Am I content? Am I content? Whatever God has given me, I should be content with. मुझे संतुष्ट होने की आवश्यकता, मुझे उन चीज़ों में संतुष्ट होने की आवश्यकता, हर बात में, हर चीज़ में जो प्रभु मुझे देता है मुझे संतुष्ट होने की आवश्यकता है। और प्रभु का दास तिमुथियुस कहते हैं कि भक्ति सहित परमेश्वर के सामने जो हमारी भक्ति है और जो कंटेनमेंट है, संतोष है, सबसे बड़ी कमाई है। हमारी भक्ति और हमारा संतोष होना, ये हमारे लिए बड़ा कमाई है, क्योंकि संसार में हम कुछ नहीं ले आए जो इसको हम ले जाएंगे। इसलिए जो हम उसके लिए करते हैं, अगर हम उसके भक्त हैं, उसके विश्वासी हैं और वो हमारी आवश्यकता पूर्ति करता, तो हमें संतुष्ट होने की आवश्यकता। और मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि मुझे सेवकाई में करीब 45 साल हो गए। 45 सालों में प्रभु ने मुझे कहीं पर भी असंतुष्ट नहीं रखा, उसने मुझे संतुष्ट करा, चाहे आत्मिक रूप से, चाहे मनोवैज्ञानिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे पारिवारिक रूप से, या चाहे और बातों में। उसने पल पल की सुधि लेकर के मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है। आई नो वन थिंग माई डियर फ्रेंड्स, is very very important for me and you to understand that God has not kept me in need, in destitution or in desperation. I am always fed by His grace in a tremendous way. And that is the reason why I think that I should tell you, my friend, that you should be content in your life. हाँ ठीक है, दुनिया अथवा से हमारी आवश्यकता होती है, कभी कभी ज़्यादा कभी कभी कम, और हम शेयर करते लोगों के साथ, बांटते हैं, क्योंकि हम आइडियल नहीं रहना चाहिए, अपने आप आइसोलेशन में नहीं, हम समाज में हैं। तो जो हमारे मित्र हैं, हमारे ग्रुप में हैं, हमारे कलीसिया के हैं, लोग को पता होना चाहिए भाई हमारी क्या क्या आवश्यकता है। लेकिन इन आवश्यकताओं के लिए हम उनसे बढ़ करके किस पर भरोसा करते हैं? परमेश्वर पर, कि वो मेरी आवश्यकताओं को मुझसे ज़्यादा जानता है, और जब वो पूर्ति करता है तो मुझे संतुष्ट होने की आवश्यकता। आई नीड टू बी कंटेंट विथ ऑल दैट आई हैव, एंड दिस इज अ ट्रू वर्च्यू ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। ये हमारे मसीह जीवन का एक बहुत ही सत्य सद्गुण है कि हमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता।
एंड व्हेन यू आर कंटेंट इन योर लाइफ देन यू विल प्रेज गॉड। आप उसका धन्यवाद करोगे, फिर ग्रम्बल नहीं करोगे, फिर आप इन बातों के लिए ग्रम्बल नहीं करो भाई प्रभु अब मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है समय लगता है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आज मित्रों आपको कि प्रभु आपकी और हमारी हर दुआ सुनता है। गॉड लिसन टू आवर ऑल प्रेयर्स बट रिप्लाइज इन 3 ways। नंबर 1 वेट, नंबर 1 प्रतीक्षा करो, नंबर 2 इट इज ग्रांटेड, ये तुम्हारे लिए हो गया, ये तुम्हारे लिए हो गया, नंबर 3 नो, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। अब आप कहेंगे भाई वेट तो चलो ठीक है, हाँ ईश्वर करता ही है, लेकिन नहीं होगा। क्यों वो कहता है? कि इसलिए कहता है क्योंकि वो मेरे और आपके जीवन को हमसे बेहतर जानता है। समटाइम ही सेज नो इज ऑल बिकॉज ही नोज माई लाइफ, ही knows about me more than I do to myself। वो मेरे पास्ट को जानता है, मेरे प्रेजेंट को जानता है, मेरे फ्यूचर को जानता है, और वो ये जानता है कि जो बातें मेरे लिए आवश्यक है वो उसी को देगा या उसी के लिए मेरे लिए प्रबंध करेगा, बाकी और बातें नहीं, चाहे मैं कुछ भी बोलता रह जाऊँ। कि परमेश्वर मेरे जीवन के उन्नति को चाहता है, मेरे आत्मिक जीवन के उन्नति को चाहता है, इसलिए वो मुझे तब रोकता है जब मैं उसकी इच्छा के खिलाफ मांगता हूँ। तो इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है मित्रों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट गॉड sometimes say no because of his divine providence, because of his divine will which surpasses all the horizons of our life, beyond our horizons, and that is for our good and our betterment। एक और पद जो मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ और उस पर हम ध्यान देंगे। अब पौलुस यहाँ पर और कहता है, इसी चौथे पद में कहता, चौथे बात में कहता है, मैंने दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात की सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीखा है। ना व्हाट इज दैट? आई नो हाउ टू बी ब्रॉट लो एंड आई नो हाउ टू अबाउंड in any and every circumstances। I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need। वो कहते हैं मैंने हर हालत में रहना सीखा। मित्रों ये बहुत बड़ी बात है। जब हमारे जीवन के अंदर सब कुछ ठीक ठीक हो ना तो हम भी ठीक होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई और परेशानी आ गई तो हम अपने टेम्परामेंट को हाय हमारा हो जाता और हम लड़खड़ाने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन में हमें हमेशा प्रभु के सामने शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। गॉड स्पीक्स टू अस व्हेन वी लिसन टू हिम क्वाइटली एंड स्पीक टू हिम क्वाइटली बिकॉज ही इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर। वो नियमित कार्य, अपने कार्य नियमित रूप से करता है, हड़बड़ी नहीं करता। गॉड इज नॉट इन हरी। उसके काम हमारे जीवन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होते चले जाते हैं। इसलिए हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता, ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों हम इन बातों पर गौर करें। डियर फ्रेंड, वी नीड टू रियली कॉन्सेंट्रेट एंड सी दैट हाउ गॉड इज इंटरेस्टेड इन अस टू लीड अस एंड गाइड अस सो दैट वी मे कंटिन्यू टू वॉक विथ हिम। एंड नंबर 5, द 4th पॉइंट एंड द 5th पॉइंट इज, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through him who strengthens me। 5th thing, who strengthens me? The Lord Jesus Christ। Why he strengthens me? Because of his purpose। वो मुझे सामर्थ क्यों देता है? उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी मन इच्छा के लिए, नहीं तो वो मुझे छोड़ दे। Have you ever thought that when you go to prayer to the Lord, in prayer to the Lord, and then suddenly he says, I am not interested in you? No, no, no। अगर वो ऐसा बोलना शुरू कर दे मेरे जीवन के लिए तो आप समझ लेना मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। फिर आगे भी कुछ नहीं होगा, पीछे तो जो भी उसका रिग्रेट ही रहेगा, मैंने इतना क्यों करा। लेकिन गॉड नेवर सेज जस्ट वेट, ही सेज आई एम विथ यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी कठिनाइयों में, तुम्हारे परेशानियों में और तुम्हारे तमाम उन बातों में जिससे तुम परेशान हो सकते हो। मित्रों हम आज यहीं रुक जाएंगे 13वें पद में। कल हम आगे इसको देखेंगे।
Dear friends, we'll stop here, but tomorrow we'll see from verse 14th of uh, fourth chapter. फोर्थ चैप्टर, मैंने पहले थर्ड कहा लेकिन थर्ड नहीं, फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर ऑफ फिलिपियंस. प्लीज पार्डन मी फॉर सेइंग थर्ड चैप्टर, दिस इज फोर्थ चैप्टर. फोर्थ चैप्टर वी हैव सीन टुडे फ्रॉम वर्स 8 to 13. हमने चौथे अध्याय में देखा फिलिपियों के, उसके 4 अध्याय के 8 से 13 पद तक. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग के स्वर्ग में विराजमान जीवन के दाता, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए. चाहते प्रभु कि वचन की आशीषें हमारे जीवन में बनी रहे प्रभु, ताकि हम आप में बढ़ते चले जाएं. जो वचन का पाठ हमने पढ़ा, जिस पर हमने गौर करा प्रभु, ये वचन हमारे हृदय के अंदर 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल उत्पन्न कर सके. हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. Dear friend, couple of announcements I like to make here. As you know that we have given break to this Bible study for last almost 2 months. I left when I went to hospital on 15th or 14th of September, and today is 23rd of November, almost 2 months. In between, our pastor, assistant pastor, Pastor Sharon Sawant led in Bible study, but I could not because of my health reasons. But now God has made me whole, and I will continue this Bible study, and I hope that you listen to this Bible study. We'll have now not every day but every alternate day, that is on Tuesday, on Thursday, and on Saturday. And if God willing, we'll also continue our Sunday Bible study, that is second and fourth Sunday of every month, and it will start at 7:30. But this Bible study now, because of the cold season, we are bringing a little bit, time is altered now, time is 7 o'clock. 7 to 8 or 8:15, we'll have our alternate days Bible study. Dear friends, our church office is open every day, working day, from morning 10:30 to evening 5:30. If you have accumulated your church Sunday offerings, or you have your church fund to pay or your plus to pay, so please come and use this time and pay this money to our assistant pastor, Pastor Sharon Sawant, and collect the receipt also. So this is, everything is kept deposited in the proper bank where we have our account, and then use this money with fear of God for the announcement of His kingdom in and through AMC. Also, I request our Sunday school, I praise the Lord for they meet every Sunday from 4 o'clock by Zoom. Also youth, they meet every Sunday at 2 o'clock afternoon, and also WC sister every second Saturday by Zoom at 4 o'clock evening. I hope that you continue to be part of that, and may God bless all of you. Let us pray. We thank you, Lord, for this precious time that you have given to us today, so that we could study your holy word. We pray as we go from your place, Lord, let your presence be with us and guide us. Bless this blessed congregation, Hindi, Nepali, English congregation, and pray your presence be with us always. And give us that grace that we may continue to love you, Lord, because you are the truth, life, and resurrection. Help us, Lord, to trust you. In Jesus' matchless name I pray. Amen. And now, in the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, especially this blessed congregation of Apostle Methodist Church, now and forevermore. Amen.